Hello everyone and welcome back in Creative English Academy. Uh, Dear friends, today we are going to learn again one another supplementary reader topic, that is mating. So I'll show you the lesson. This lesson, it has been taken from a long novel written by Charles Dickens, and the title is A Tale of Two Cities. So basically, this is historic novel, and uh, the story, it has been taken from that historic novel. Because why the novel is historical? Because it is depend on one historical event, which is French Revolution one. So we are going to learn a meeting between, or among, we can say, basically it is between a daughter and her father. So this is the lesson. As I told you, it has been taken from the a historical novel which is written by Charles Dickens, and the title is a tale of a tale of two cities. Okay, which were the two cities? One is London, and another is France, Paris. Okay, so basically the two cities are London and Paris, and uh, how the entire novel deals with the two cities. So we'll just learn one mating part of from this novel. So let's begin. First of all, we'll try to understand some characters from the story. So the basic most important character of the story, the she is, you can see she is the person you can see here as a cobbler. Is actually not a cobbler, but he is Alexander Manet, Dr. Alexander Manet. He is the Dr. Manet, and Lucy, she's daughter. So understood from the story. Uh, Mr. Laurie. Okay, so Mr. Laurie is a character who is a friend of this Dr. Manet. जो डॉक्टर मैनेट का एक फ्रेंड होता है, मिस्टर लॉरी. So Mr. Laurie, Dr. Alexander Manet, and Miss Lucy. These are the three characters. Another one, Pross, Miss Pross. Miss Pross is another one character. Miss Pross. She is the attendant of this girl. मेड है, उसका नाम है मिस प्रॉस, जिसने उसको बड़ा किया था उसके फादर के बिछड़ने के बाद. तो ये बेसिकली जो लूसी है, शी lost her father, and both are meeting. That's why meeting is the title. Another one character is there. Another one couple, Mr. and Miss Deforge. Mr. and Miss Deforge, ये जो कपल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो जिन्होंने ये डॉक्टर मैनेट को ये बेस्टिल के किले में वो कैद थे बहुत साल तक. उनके किले में कैद किया था. तो किले से छुड़वाने के लिए जो जिन्होंने मदद की और जो उनको संभाल रहे थे अभी भी मीटिंग से पहले तक, डॉक्टर यहाँ पे मिसेस एंड मिस्टर एंड मिसेस डैफॉर्ज, ये उनको ये डॉक्टर अपना जो भी मेंटल स्टेबिलिटी हो खो चुका था, ये डॉक्टर मैनेट खो चुका था, और को अभी एक इन में ये उनको संभाल रहे थे. मिस्टर एंड मिसेस डैफॉर्ज, उनका एक शॉप था, इन थी, और वहां पे वो एक सेल में उनको रखा था.
एक एटिक में उन्होंने उनके लिए एक घर, छोटी सी रूम बनाई थी, और वहाँ पे ये जिसने पूरी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो गया है, ये डॉक्टर मैनेट 18 साल तक जेल में रहने के बाद अपनी मेंटेलिटी खो चुका था, और इसको संभाला है ये कपल ने, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मिस्टर एंड मिसेस डैफॉर्ज। उसके अलावा ये डैफॉर्ज, मिस्टर एंड मिसेस डैफॉर्ज ने ये डॉक्टर मैनेट को क्यों संभाला था, क्योंकि ये मिस्टर एंड मिसेस जो ये डैफॉर्ज जो थे, ये इनके जब वो पेरिस में रहते थे ये, तो उनके पुराने सर्वेंट्स थे, इसीलिए इनको ये अभी मेंटल स्टेबिलिटी खोने के बाद ये कपल ने उनको संभाला है। और ये डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की ये लड़की है जो बिछड़ गई है, 18-20 साल से दूर रह रही। अब ये लड़की रहती है लंदन में, पेरिस में। तो दैट्स व्हाई द कनेक्शन बिटवीन these two cities, that's why a tale of two cities is the novel. So I hope so you understood the characters. So the basic character, main characters are Mr. Lorry, जो ये मैंने आपको बताया, डेफॉर्ज, मिस्टर एंड मिसेस डेफॉर्ज, इतने। इसके अलावा 2-3 कैरेक्टर है ये पूरी नॉवेल में, मगर के लिए हमें इतने ही काफी है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई द टाइटल इज गिवन मीटिंग, बिकॉज हियर we will find a meeting between this daughter and father. So let's begin. तो शुरू करते हैं the meeting. Lucy, I must reveal to you that your father is neither dead nor alive, said Mr. Lorry. लॉरी, अंकल लॉरी, जो डॉक्टर मैनेट के फ्रेंड थे, राइट। और वो कह रहे हैं अभी लूसी को कि लूसी, आई मस्ट रिवील समथिंग, आई, अलेक्जेंडर मैनेट ये लूसी के फादर है। लॉरी, अंकल लॉरी कह रहे हैं कि लूसी, तुम्हारे फादर जो है अभी ये, he is in a state that your father is neither dead even nor alive. How can it be possible? It is possible. He is neither dead nor alive. The person who has lost his memory, he is alive, physically is alive, but mentally he is not there. So this is the state that not neither dead nor alive. So neither dead nor alive. What do you mean, Mr. Lorry? वो कह रहे हैं कि अंकल लॉरी, आप कैसे कहते हो कि नाइदर डेड नॉर अलाइव मींस व्हाट डू यू मीन? आस्क लू अ काइंड ऑफ, उन्हें उसने डरते सहमते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है, माय फादर इज नाइदर डेड नॉर अलाइव मींस व्हाट? सो शी वाज इन डिलेमा, शी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट डज ही मीन। वी मस्ट गो एंड मीट योर फादर, सेड मिस्टर लॉरी। सो मिस्टर लॉरी कहने लगे कि वी मस्ट, हम जाते हैं और तुम्हारे फादर को मिलते हैं। वाज भी मेंटल एबिलिटी खो चुके हैं, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, ये है उसके फादर लूसी के। हिज घोस्ट, सो शी सेड, क्वेश्चन लूसी, लूसी अगेन शी क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन कर, एम आई गोइंग टू सी हिज घोस्ट? घोस्ट मीन्स अ स्पिरिट, आत्मा। क्या हम उसकी आत्मा को, मेरे फादर की आत्मा को मिलने जा रहे हैं? मीन्स शी थॉट दैट माय फादर ही इज डेड, ही इज नॉट अलाइव, तो चल बसे है, अभी नहीं है, तो क्या हम उसका उनका भूत देखने जा रहे हैं क्या? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन शी आस्क्ड। ही इज अलाइव फिजिकली, ही वाज रेडी। सो ये कह रहे हैं कि ही इज अलाइव फिजिकली, वो फिजिकली जिंदा है। ही वाज रॉन्गफुली एंड सीक्रेटली टेकन इनटू कस्टडी, वो गलती से उनको वहां से, उनके ऊपर अक्यूज लगाया था, चार्जेस लगाए थे, और उनको जेल में भेजा था। और उसके बाद जो उनको कस्टडी में लिया गया, उनको बाजू में अभी सीक्रेटली उनको एक जगह पे रखा है, जो किसी को पता नहीं, मगर वो जिंदा, अनटोल्ड ईयर्स। सो व्हाट हैड हैपन, आपके पिताजी को कैद क्यों किया गया था, इसका एक कारण है कि जो एन अननोन
किसी के ऊपर आरोप लगाना, तो के ऊपर आरोप लगाए थे। योर फादर ऑफ बीइंग अ स्पाई, तो आपके पिताजी जो है किंग का स्पाइंग कर रहे थे, यानी उनकी जानकारी दूसरे को दे रहे थे। तो बिकॉज ऑफ दैट योर फादर वॉज गॉट कैप्चर्ड, तुम्हारे पिता एंड यूज किंग्स नेम टू इम्प्रिजन हिम, और उनको राजा के कहने के हिसाब से इम्प्रिजन कैद कर लिया गया। फॉर हिम एंड इवन अनटोल्ड ईयर्स, कितने कितने दिन कैद रखना है वो भी डिसाइड नहीं हुआ था। But he has been found now. But luckily, your father is alive and he is there. We found him out, he said. I pulled a few strings, means I collected some information. I understood something about your father. His soul has been damaged with such prolonged captivity. But unfortunately, your father's means his sensations. He has lost his sensations. He had spent his life near about 18 years in a small prison. So it is too difficult for a person to live such a long period and spending such a long period lonely. तो जो कोई इंसान इतने साल तक अकेला रहेगा तो डेफिनेटली वो अपनी मेंटल एबिलिटी खो देता है। तुम्हारे फादर के साथ, and his soul has been damaged with such prolonged captivity, hold him in a longer period. He is safely rest in an inn, and now he is safely rest in. हम आज के इसमें एक स्मॉल होटल और छोटी जो जहाँ पे रहना खाने का पॉसिबल है, उसको शराब खाना भी कहा जा सकता है। वी आर गोइंग देयर नाउ अंकल Laurie, he said. Mr. Laurie, he said, now we are going to meet him. Let's try and bring him back to life. चलो तो हम जाते हैं और उनको उनकी लाइफ उनको वापस उनके सेंसेशन में लाते हैं। We'll try. We and Miss Pross must depart right away, he said. We and Miss Pross का नाम आया है देखो यहाँ पे, जो कि अटेंडेंट है। वो उसको अंकल लॉरी कह रहे कि हम मिस प्रॉस को भी हम हमारे साथ लेके जाएंगे। एंड वी मस्ट डिपार्ट राइट अवे, मीन्स अभी हमें निकल, डिपार्ट मीन्स टू स्टार्ट टू लीव, चलने के लिए तैयार होना। मिस प्रॉस लूसीज लॉयल, एज आई टोल्ड यू शी वाज मेड इवन हाउसकीपर, और वो लूसी की लॉयल सर्वेंट थी मिस प्रॉस। मिस प्रॉस प्रोवाइडेड अ प्रोएक्टिव शील्ड, प्रोएक्टिव, राइट, एंड हु इज अ काइंड ऑफ शील्ड, जो उसको हमेशा बचाती थी, उसका हमेशा ख्याल रखती थी। वाई शी इज कॉल्ड शील्ड, बिकॉज शी वुड टेक केयर ऑफ दिस लूसी। So Miss Pross must depart right away. Pross, Lucy's loyal servant, provide a protective shield to her. She looked stern and did not encourage wrong behavior. She was the stern lady, strict lady, and she never encouraged any kind of any wrong behavior. In her presence, it took courage, और जब तक वो उसके लूसी के साथ थी तब तक कोई लूसी को हाथ भी नहीं लगा सकता है। इवन लूसी के साथ कोई जबरदस्ती तो दूर से कभी बात करने की भी सोची खैर नहीं थी। ऐसी स्ट्रिक्ट लेडी मिस प्रॉस उसके साथ हमेशा रहती थी। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जो कि लूसी के पिताजी, सो हर रेड हेयर डिड लिटिल टू comfort the brave who mustered, and her sharp and quick voice made it difficult for best of and see when she would be with Lucy. So Lucy also, she could be such a strong, full or courageous girl. She would look like when she is with her. Her red hair did little to comfort the brave who mustered. Mustered means gather courage. Muster courage means gather courage or calculate courage. Approached Lucy, and her sharp and quick voice made it difficult for best lawyer to argue with her. और बेस्ट लॉयर भी जब उसके साथ
सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती थी. However, underneath her stern exterior hid a compassionate person, और ऐसे स्ट्रिक्ट लेडी के अंडर में एक compassionate person, who is here compassionate, grew under such a strict lady's vigilance. ऐसे स्ट्रिक्ट लेडी के साथ एक compassionate गर्ल, जो compassionate person है, वो रहने लगी. उसका नाम लूसी था. She had devoted her time and energy to bring up Lucy right. और वो लेडी ने, मिस प्रॉस ने, अपनी पूरी एनर्जी खर्च की थी लूसी को प्यार से बढ़ाने में, उसको करेज देने में, उसको हिम्मत देने में, उसकी लाइफ बनाने में. उसने पूरी लाइफ अपनी उसके लिए खपा दी थी, चला दी थी. सो मिस प्रॉस फॉर दिस गर्ल लूसी पीपल. सो द इन, यहाँ पे मैनेट को रखा गया था, अलेक्जेंडर मैनेट जो लूसी के पिताजी थे, उनको रखा गया था एक इन में. डार्क, वो भी कैसा था, डार्क, फील्ड विथ वेरी, बहुत कम रहते थे लोग, थे वैसी जगह पे उनको रखा था. एंड एज आई टोल्ड यू, मिसेस डेफॉर्ज, जो एक जमाने में डॉक्टर मैनेट के सर्वेंट थे, राइट, अभी वो डॉक्टर मैनेट को संभाल रहे थे. सो मिसेस डेफॉर्ज, द इन ओनर वॉज सिटिंग एंड निटिंग क्वाइटली. तो जब ये सब जन वहां पे गए, जो वो इन में जहाँ पे लूसी, डॉक्टर, सॉरी, मिस लॉरी, लॉरी, सो ये तीनों वहां पे जाने के बाद उन्होंने देखा, तो वो इन में मिसेस डेफॉर्ज, ओके, मिस्टर डेफॉर्ज की कुछ बुनाई का काम कर रही थी, कि खामोश रहकर कुछ तो भी बुन रही थी. मिस्टर लॉरी, लूसी एंड प्रॉस took their seats in a corner and awaited Mr. Deforge's arrival. So all they just occupied their seats. They found a seat, particular one seat for everyone, and just settled there. Mr. Lorry, Lucy, and मिस प्रॉस, ये तीनों टुक देयर सीट्स इन अ कॉर्नर एंड अवेटेड, और वो राह देखने लगे, क्योंकि मिस्टर डेफॉर्ज के आने की राह देखने लगे, क्योंकि मिसेस के हाथ में कुछ नहीं था, मिस्टर बाहर गए थे. सो डॉक्टर मैनेट वाज आस्क्ड टू हाइड इन हिज इन देयर डायरेक्शन, एंड उनकी बीबी ने इशारे से कहा कि ही इज मिस्टर डेफॉर्ज, so you can meet him. So they were waiting for that man, and he came. Mr. Deforge entered, and his wife pointed him, and in which Dr. Manet was arresting. और यहाँ पे डेफॉर्ज ने ग्रांटेड, मान लिया, उनको सबको पहचान के कहा, उनके साथ चला गया टूवर्ड द रूम इन विच डॉक्टर मैनेट वॉज रेस्टिंग. और अलेक्जेंडर मैनेट जो रूम में उनको, ऑन हिज वे टू द रूम ही पुल्ड आउट अ की, और जाते समय उसने एक छोटी सी की ली, पुल्ड आउट, खींचकर वहां से निकल. देयर अ थ्रेट टू हिज लाइफ, हिज लाइफ दिस मॉर्निंग, इंक्वायर्ड मिस्टर लॉरी. जो अंकल लॉरी थे, उन्होंने डेफोर्स को कुछ खतरा है क्या, उनको, he why he was kept in that room, may I know the reason why the doors has been locked, और डोर, दरवाजा क्यों बंद करके उनको रखा गया है. was there threat, डेंजर है क्या उनके लाइफ को, कुछ थ्रेट यानी धोखा, फॉर हिज लाइफ दिस मॉर्निंग, कुछ धोखा है क्या उनके लाइफ के, कुछ डेंजर है क्या उनके लाइफ को, इंक्वायर्ड मिस्टर लॉरी. सो मिस्टर, so he asked me to lock him. He is still not used to the freedom they have hammered. And he said, जो ये
उन्होंने कहा, ही आस्क्ड मी टू लॉक हिम, उन्होंने ही कहा है कि मुझे बंद करके रखो। ही स्टिल नॉट यूज्ड टू द फ्रीडम, अभी भी उनको नहीं लगता है कि वो फ्री है, वो अभी भी खुद को ओनली, दैट्स व्हाई दे आस्क्ड मी टू लॉक मी। दे हैमर्ड आउट हिज सेंसेस ऑफ फ्रीडम, उन्होंने जो उनके सेंसेस है फ्रीडम के वो पूरे खो चुके हैं, हैमर्ड आउट हो चुके हैं, को बंद करके रखना चाहते हैं, हमने उनको बंद करके नहीं रखा है, वही कह रहे हैं कि मुझे बंद करके रखो, इसीलिए हमने उनको एक रूम में बंद करके रखा है। बिकॉज ऑफ हिज परमिशन, मीन्स डॉक्टर मैनेट की परमिशन से ही मैंने उनको बंद करके रखा है, और एक ज़माने में ये डेफॉर्ज में। So the key opened the locks to the small room, which was dark and cold. और जो उन्होंने दरवाजा खोला की से, तो एक छोटी सी रूम थी, स्मॉल रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड, जो कि बहुत ही अंधेरी और ठंडी रूम थी। वन कुड स्मॉल मूविंग साउंड ऑफ द नेबर, पर्सन का जो छोटा छोटा आवाज चलने का होता है वैसे, टू होल्ड लूसी बाय हर वेस्ट। लॉरी ने क्या कहा, इतनी अंधेरी थी कि वहां पे एक दूसरे को था, खाली दूसरे हमारे बाजू वाले के आहट से हमें सुनाई समझ सकता था कि हमारे बाजू में कोई है, ऐसे अंधेरी अ, थाम लिया, हाथ पकड़ लिया। वाई, बिकॉज ही थॉट शी वॉज अबाउट, शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर ओन फादर, उसको अपने खुद के ही पिताजी का डर ना लगे, इसीलिए उसके उसका हाथ उन्होंने पकड़ लिया और उसके साथ चलने लगे। यू आर वर्किंग हार्ड टुडे आई सी, आस्क्ड डेफॉर्ज। सो डेफॉर्ज ने यहाँ पे किसको पूछा, जो ये इन का मालिक था, इन कीपर, डेफॉर्ज, मिस्टर एंड मिस। तो मिस्टर ने कहा कि यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आज तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, आज तुमने बहुत मेहनत। as if he was afraid that someone might, यहाँ पे पिताजी, उन्होंने कहा हार्ड, बट he muttered softly when he spoke, he just वॉइस, कम आवाज में उन्होंने मुंह का मुंह में ही कहा, ज्यादा लोग न सुन सके ऐसे, उन्होंने कहा कि मैंने आज बहुत काम किया है। सो सी हिज कंडीशन, व्हाट वाज हिज कंडीशन, ही हैड स्पेंट हिज लाइफ near about in years in there, so his face was covered with a white beard, तो उसका पूरा चेहरा जो है सफेद दाढ़ी, his pale skin was the same color as his ragged towards the door, uh, his ragged clothes, उसके ragged पूरा, told the cruel and untold tales of prison life, और उसकी उसकी स्किन के ऊपर का पूरा जो हेल्दी था, वो पूरा हेल्थ वो लॉस्ट कर चुका था, पूरा मानो कि हड्डियों का ढांचा वो बन चुका था, और ये सबूत था दैट ही हैड स्पेंट हिज लाइफ नियर अबाउट देयर, हिज बैक वाज टुवर्ड्स द डोर, और ये ऐसी इस तरह से बैठ दरवाजे की तरफ की थी और मुंह दीवार की तरफ कर कर वो बैठा था। व्हेन दे ही वाज वेरी बिजी वर्किंग, अब जन यानी कि मिस प्रॉस, मिस लूसी, अंकल लॉरी एंड डेफॉर्ज, इतने जन वो रूम में गए, तब वो इस तरह से बैठा तो कुछ तो भी काम कर रहा था, कॉबलिंग का काम कर रहा, शू दुरुस्त कर सुधार रहा था वो। सो द रूम, सो ही डिड नॉट एक्नॉलेज देयर, so his back was towards the door when they entered. He was very busy working, से काम कर रहा था। He did not acknowledge their presence as they entered, and उन्होंने उसने ऐसा नहीं जताया कि में आए हैं। He just wanted to work, और अपना काम उसने रोका नहीं, जो भी ये आए हैं तो भी उनको पता चला कि अपना काम एक्नॉलेज, उनको नहीं बताया कि काम नहीं रुका है उन्होंने, वो आए तो वो अपना काम करने लगा। He just wanted to work. The I'm going to draw the curtains. So डेफर्ज, सो डेफर्ज ने कहा कि ये रूम तो बहुत ही अंधेरी है,
तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कर्टेन्स, मैं थोड़े से उसके पर्दे उतारूँ क्या, पर्दे खोल दूँ क्या। विल दैट बी ऑल राइट विथ यू, तुम्हारे लिए वो ठीक होगा क्या, उसने सवाल करते हुए डॉक्टर मैनेट से सवाल करते हुए कहा और पूछ लिया। सपोज रिप्लाइड मैनेट, आई सपोज, मुझे लगता है कि तुम भी खोल लो, कोई बात नहीं। फिल्ड विथ लाइफ, जैसे ही पर्दा खोला रूम का तो क्या हो गया, द बीम ऑफ लाइट, तो उजाला, सूरज की जो उजाले की, darkness plunged, engulfed means plunged everywhere, spreaded everywhere. So the darkness and the room was filled with life, तो उस रूम में जान आ गई, अंधेरा खत्म हो गया। वो बुढ़ा आदमी जिसका नाम अलेक्जेंडर मैन, वो क्या कर रहा था, शूज सीने का काम कर रहा था। उसकी बच्ची जो उससे बिछड़ गई थी 18-20 साल पहले, वो उससे मिलने आई है, मगर उसको वो अपने सेंसेशन। So, see, the old man was busy cobbling shoes. Shoes cobbling means repairing the shoes. His tools were all around him. उसके पूरे औजार टूल्स आजू बाजू में फैल चुके थे। You are not a shoemaker by profession, are you? Asked Lucy, hoping to get an answer from her drenched father. और उसने, जो लूसी ने क्या कहा देखो, नॉट अ शूमेकर बाय प्रोफेशन आर यू, क्या तुम पेशे से एक जो हो क्या आप, ऐसा उसने कहा। आस्क्ड लूसी, होपिंग टू गेट एन आंसर, उससे उसको लगा चेंज्ड फादर, राइट। सो उसको लगा फादर उसको आंसर देंगे, बट ओ नो सुसी, आई वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। एंड ये डॉक्टर मैनेट जो लूसी के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि ओ नो नहीं, प्रोफेशन से। आई लर्नड दिस व्हेन आई वाज इन प्रिजन, मैंने एक काम सीखा है जब मैं प्रिजन में था। रिप्लाइड द फादर, तो लूसी के फादर ने रिप्लाई करते हुए कहा कि मैंने ये काम सीखा है। राइट, हियर इज न्यू वन वर्ड दैट deranged means insane. Okay, deranged here, insane. You can find the person who has some senses remain, deranged father. So यहाँ पे deranged father, उसको लगा, he said oh no, I am not by profession, I am not this shoemaker, because I have learned the thing in prison, that's why I'm working still the same, because 80 years before I was a doctor, now I have completely forgotten, and in the prison I worked only as a cobbler, that's why I remember that work only, I'm doing that work only. See then, do you remember anything about me, Mr. Manet? सो यहाँ पे अंकल लॉरी ने पूछा, अभी ये सवाल पहले लूसी ने पूछा, दूसरा सवाल डॉक्टर, सॉरी, मिस्टर लॉरी, जो अंकल लॉरी है वो पूछ रहे, वो कह रहे, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट मी, तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो, मिस्टर मैनेट, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, वो बुड्ढे को कहा कि तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो। मिस्टर मैनेट स्पेस, डॉक्टर मैनेट के फेस के ऊपर थोड़ा ऐसा आंसर देने से पहले द स्माइल वेंट अवे एंड ही वर्क, तो उसकी स्माइल चली गई और उसका ध्यान उसके औजारों पर गया और उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। शायद वो जानता था, ऐसा लगता है। डू यू रिमेंबर मी, डॉक्टर मैनेट, डू यू रिमेंबर मी एट ऑल, अर्ज्ड मिस्टर लॉरी। सो यहाँ पे मिस्टर लॉरी again and again, they were urge means request, he was requesting, is trying to convince him that do you remember me, do you remember me, तुम मुझे पहचानते हो क्या। the old tired face looked up, जो ओल्ड टायर्ड फेस, डॉक्टर मैनेट का जो फेस लुक्ड अप, अंडरस्टैंडिंग आईज, the otherwise understanding eyes, after 18 years of captivity, gaze at him and he read, साल पहले वो उसको जानता था, अभी इतने दिनों बाद वो शायद भूल गया था।
and captivity. Because of that captivity, prison life captivity, gaze at him and he returned to making shoes again. और उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया. Means he was not in proper senses to recall his memories related to the people those who were there in that cell or in that room. और वो जो डॉक्टर मैनेट है वो पहचान उसको शायद पता था, मगर उसकी पूरी मेमोरीज रिकॉल नहीं हो रही थी. वो कुछ एक्सप्रेशन देता और कुछ रिमेम्बर करने की सोच था, तभी उसका ध्यान वो औजारों पे जाता और वो अपना काम शुरू कर लेता. सो एवरीवन स्टूड अराउंड द मैन. सो ये सब जन, कौन कौन? मिस प्रॉस, अंकल लॉरी, लूसी his daughter, and डॉक्टर इवन, मिस्टर डैफॉर्ज, ये सब जनों उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए. इवन एवरीवन स्टूड अराउंड द मैन हु इज द मैन, डॉक्टर मैनेट, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, विशिंग ही वुड लुक अप एंड रिमेम्बर समवन समथिंग. और उनको लगा कि इनमें से किसी को तो भी वो पहचानेंगे और उनके बारे में कुछ तो भी बोलेंगे. When he finally did look up in search of his tools, he noticed Lucy's dress. Who are you? He asked. और वो जैसे ही क्या हो गया कि उसने किसी की तरफ नहीं देखा. When he finally did look up, अब जब आखिरी में उसने ऊपर देखा, for his tools, उसके टूल्स लेने के लिए उसने ऊपर देखा. So he noticed Lucy's dress. तो उसने लूसी का ड्रेस उसके you, he asked. Means Dr. Manet, he asked to even his own child, daughter, who are you? अपने ही बेटी को उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो. लूसी could not hold back her tears. और लूसी अपन हो तो अपने पिताजी का पागलपन देखकर वो रोने लगी. उसकी आंखें फूट पड़ी और वो फूट के रोने लगी. They were a testimony of how terribly she missed her parents, and they were a testimony of how terribly she missed her parents. ये तो एक तरह का क्या बिहेवियर था उसके साथ. उसने पूरी लाइफ के 18 साल अपने पेरेंट्स से दूर रहा. अभी भी वो टेस्टिमनी से ही जा रही है कि सो अगेन द जेलर्स डॉटर आस्क्ड डॉक्टर मैनेट. डॉक्टर मैनेट लूसी के पिताजी लूसी से कह रहे, आर यू द जेलर्स डॉटर? तुम क्या जेलर्स की बच्ची हो? नो आई एम नॉट, रिप्लाइड लूसी. लूसी ने कहा, नहीं, मैं जेलर की बेटी नहीं. बाय हिज शोल्डर्स और sat next to him. लूसी गई और उसके बाजू में बैठ गई. एंड हेल्ड हिम जेंटली बाय हिज शोल्डर्स. उसके कंधे. मैनेट hesitated for some time to reach out to her. अपनी बच्ची को ही थोड़ा दूर करते हुए हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाए कि उसको लगा, उनको लगा कि ये कौन है, सांस क्यों आ रही है. एंड ही रीच्ड आउट टू हर, उससे वो दूर जाने लगे. ही स्टार्टेड एट हर he strayed at her blonde hair. और जो डॉक्टर मैनेट ने उसकी बालों की तरफ देखा, ब्लोंड हेयर, गोल्डन हेयर की तरफ देखा. टच्ड इट एंड देन फ्रैंटिकली, और उसको उन्होंने वो गोल्डन जो लूसी के बाल थे उसको टच भी किया. और फ्रैंटिकली, फ्रैंटिकली मीन्स इंस्टेंटली, स्टार्टेड डिगिंग इनटू हिज पॉकेट. और उसने उन्होंने कुछ तो भी अपने पॉकेट में डिगिंग डिगिंग यानी खोजना शुरू कर दिया. उन्होंने क्या ढूंढा, देखो उनके पॉकेट में क्या था. ही रिमूव्ड स्ट्रैंड्स ऑफ, अपने बीवी के, उनकी बीवी के वो बाल थे. लूसी के मदर के बाल उन्होंने निकाले और वो बाल की तरफ देखा, वो भी गोल्डन थे और लूसी के भी बाल गोल्डन थे. उनको उन्होंने गेस किया कि शी इज माई डॉटर. बट नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. माई डॉटर इज वेरी टाइनी. मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है. और वो कहने लगे कि उन्होंने उनका छोटी है. यू आर टू ओल्ड टू बी माई गर्ल. तुम तो मेरी बच्ची नहीं. आई लेफ्ट हर फ्रॉम,
व्हेन आई लेफ्ट हर, मैंने उसको जब छोड़ा तब तो मैं उसको मेरी बाहों में समेट सकता था, वो इतनी छोटी थी। तुम तो बहुत बड़ी हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती हो। देखो, दीज लाइन्स इंडिकेट्स दैट द पर्सन ही हैड लॉस्ट हिज सेंसेशन, वो पूरे अपने सेंसेशन खो चुका है, मेंटली रिटायर्ड हो चुका है। ये बातों से हमें समझ में आता है। सो हियर we understood, he tallied the here, he tried to understand whether the girl, she is of his girl or any another. He guessed, but he said, no, you are not my girl, because my when I left my girl, she was too small, I could hold her in my arms, but you are somehow longer and grown, so girl, so it's not possible, he said. Lucy continued to hold him gently and explained every important had occurred in the last 18 years. So Lucy did not leave हर फादर अलोन, वो अपने फादर को छोड़ ही नहीं थी, उसने होल्ड टाइटली होल्ड किया, पकड़ लिया, जेंटली होल्ड, एक्सप्लेन एवरी मोमेंट, एक एक पल का उनको बोलने लगी कि पिताजी मैं आपके, आप नहीं थे तो मैं कैसे रही। एवरी दैट ही ऑकर्ड इन द लास्ट 18 ईयर्स, पूरे 18 साल की उसकी यादें वो फूट फूट कर अपने पिता के रोने लगी, बोलने लगी। ही लिसन, ही लाइक लूसीज इनसैटिबल वॉइस, और यहाँ पे इनसैटिबल, सो इम्पॉसिबली टू सेटिस्फाई, तो लूसी का जो वॉइस था, वो जो रोने लगी थी, वो उनको पॉसिबल नहीं था उनको सेटिस्फाई, उनको सच नहीं लग रहा था, वो वॉइस सच नहीं लग रहा था वो पिताजी को। व्हेन ही ग्रीव कामर, लूसी रिक्वेस्टेड मिस्टर लॉरी टू अरेंज फॉर अ कोच to take him out of the France because it was not safe for her father to stay in France। तो उन्होंने, लूसी ने कहा थोड़ी देर बाद, शांत होने के बाद, when he grew calmer, वो जब शांत हो गई, शांत होने के बाद, लूसी रिक्वेस्टेड अंकल लॉरी आउट ऑफ फ्रांस, मेरे पिताजी को फ्रांस से बाहर ले जाने के, दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर हिम एज सुन एज पॉसिबल, उनको जितने जल्दी उतने जल्दी उनको लंदन ले जाना पड़ेगा। सो लूसी सेड these sentences to Uncle Laurie. So here, dear friends, we have completed the lesson meeting. This is the meeting between a father and a daughter, and the meeting, it was held by uh, Uncle Laurie, Mrs. Pross and Mr. and Mrs. Deforge। तो ये स्टोरी, ये एक पार्ट, ये स्टोरी का, ये नॉवेल का यहाँ पे हमने देखा मीटिंग, एक बच्ची अपने पिताजी से कैसे खो गई थी। सो यहाँ पे जो बेस्टिल का जो किला था, उसमें ये लूसी को, पिताजी को रखा गया था, और क्योंकि उन्होंने जो वहाँ के गमीर गरीब और अमीर लोगों में बहुत बड़ा अरिस्टोक्रेट्स, और जो गरीब लोग थे उनमें उनमें एक रिवॉल्यूशन, जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुई थी, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त ये पूरी कहानी है, और ये कहानी दो सिटीज के बीच में है, दैट इज, जस्ट आई टोल्ड यू दैट, पेरिस एंड लंदन, दैट्स व्हाई द टाइटल इज गिवन अ टेल ऑफ टू cities। So everyone, we have completed now some questions based on this lesson. Answer the following questions to 30 to 40 words each. Answer the following questions even 180 to 100 words. Just I'll show you direct answer of these questions. It is easy, everyone, you, because simply you read these answers. These answers will help you to understand even more clear the lesson. I request you all don't copy the answers as it is. These answers are just for your reference. Simply you read the answers. First of all, read the question, prepare your own answers. Write answers by own. Don't copy the answers as it is. So here we have completed the lesson, the meeting.
Okay, so we'll stop here. Tomorrow again in the next period we will be continuing another story. Everybody, I think so these videos, you will find these videos helpful. So thank you very much for watching. Thank you.